Yes, ma'am. Okay. First question is, a charge Q is placed at the center of the line joining the two equal charges, capital Q. So what will be the value of small q for the system of three charges to be in equilibrium? So when do we say that the system is in equilibrium? When all the charges are cancelling each other means they're equal. When all the charges cancel each other. All the forces that the charges are putting on each other cancel each other, and the charges are at rest. Okay, yes, net force on each charge is zero. So system is in equilibrium when the net force on each charge is zero, right? So we have a system of three charges. So these two capital Q charges are placed at the ends and they are some distance apart. And this charge Q is placed at the center of these two charges. We can either take this as R or R by 2 कर सकते हैं. Or we can do one more thing. हम इसको 2R ले लें. और ये जो distances है इनको हम RR ले लें. आप कैसे comfortable हैं? ऐसे comfortable हो, or we can write this as R and we can write R by 2 for them. Tell नहीं me. मैम, यही ठीक है. ये ठीक है? Okay. So let's take this point as A, this point as B, and this point as C. Now you can see we have no numerical value here, no numeric value here. We have all variables. ठीक है? And we are going to find the value of small q. राइट अब ये स्मॉल क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी? कोई नंबर मिला है हमें, कुछ कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट टर्म कुछ नंबर है हमारे पास इस क्वेश्चन में? वी हैव नथिंग, राइट? So we'll find this q in terms of capital Q because capital Q is something which is given to you and small q you have to find out, right? ये आपको बोला ना what will be the value of small q, right? तो अब हम क्या करेंगे? Let's consider this point, this charge which is placed at A. So because the system is in equilibrium, equilibrium का मतलब होता है कि stable system है, balanced है, stable है, right? Net force जो है वो zero है. तो हर चार्ज पे आपका नेट फोर्स जीरो होगा, चाहे वो ए पे है या बी पे है या सी पे है, राइट? सो नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए मस्ट बी जीरो, राइट? अब जो चार्ज ए पे नेट फोर्स है वो क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी नो, राइट? Total force in a given charge is a vector sum of individual forces exerted on the given charge by all the charges, right? This we have done. So net force on charge at A is, so force on A because of the charge placed at B, और आएगा force on charge at A because of the charge placed at C. तो ये दो हमारे पास forces हैं जो A पे exert हो रहे हैं. Q exert कर रहा है force, small q, and this capital Q is also exerting force on A, right? So first we'll write the expression for charge which is placed at small q, charge which is placed at B. तो ये क्या आएगा हमारा? 1/4 pi epsilon naught. We can write K for 1/4 pi epsilon naught q, right? And the square of distance r square. ठीक है? Similarly, we can find the force between the charges placed at A and C. कैसे निकालेंगे हम? K, capital Q and square of distance. Distance between these two charges is 2r, so we can write 2r square. So ये आपका आ गया K Q square divided by 4r square. Clear? Any doubt? No, ma'am. आपको बेटा ऋषिका कोई डाउट है? नहीं है, ग्रेट. अब आपका जो नेट फोर्स है चार्ज पे, जो ए पे प्रेजेंट है वो जीरो है. इसका मतलब ये है कि जो बी पे चार्ज है, जो बिकॉज ऑफ दैट चार्ज जो फोर्स है, और जो सी पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स है, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे देन विल गेट जीरो. ठीक है? सो फॉर एफ ए बी वी कैन राइट के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर. फॉर एफ ए सी वी कैन राइट के क्यू स्क्वायर बाय 4r square equals 0. We can write like this. Now move this expression to the other side. What will you get? We can write K. FAB equals negative of FAC. Sorry, please come again. FAB equals negative of FAC.
तो ये आ जाएगा ना, ये प्लस है, ये वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा नो। हाँ। अब के से के कैंसिल हो गया, ये कैपिटल क्यू से ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, और आपका जो स्मॉल क्यू आया वो आ गया माइनस कैपिटल क्यू बाय 4, एंड वी कैन एनक्लोज दिस इन अ बॉक्स. So this is your answer. Was it difficult? Any doubt? अभी भी देख लो, कुछ लग रहा है आपको तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. इस क्वेश्चन में कुछ भी लग रहा है अगर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. आप किसी भी चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हो, आप ए पे निकाल सकते हो, आप सी पे भी निकाल सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर. लेकिन अगर आप बी कंसिडर करोगे तो भी सी, वहां पे भी आपका नेट फोर्स 0 है, लेकिन अगर हम ये कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक्सप्रेशन के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे भी आपका एक्सप्रेशन के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा. तो ये दोनों फोर्सेस आपके इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे. तो आपको स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू की टर्म्स में नहीं मिलेगा, है ना? नहीं मिलेगा ना. अगर हम ये वाला कंसिडर करते तो क्या Yes, मिलता? हाँ। नहीं मिलता ना, सब कुछ ही कैंसिल हो जाता, नहीं। है ना? तो इसलिए हमने जो सेंटर वाला चार्ज है वो हाँ। कंसिडर नहीं किया. हमने जो एक्सट्रीम राइट या ओके। एक्सट्रीम लेफ्ट वाला चार्ज है वो कंसिडर किया, सो दैट हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में जो हमें चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू नो. यस फाइन। आपको समझ आ गया कि हमने जो बी वाला क्यों कंसिडर नहीं किया है? तो इधर वी कैन कंसिडर ए वाला हाँ। चार्ज और वी कैन कंसिडर सी वाला चार्ज, बट वी वोंट कंसिडर हम्म। बी वाला चार्ज, राइट? ओके मैम, ये। Let's move to the next question now. So we have two charges, 2 in 10 to the minus 6 coulomb and 1 in 10 to the minus 6 coulomb, are they placed at a separation of 10 centimeter, where a third charge should be placed such that it experiences no net force due to these charges. Have you understood the question? यस। ठीक है, तो यहाँ पे we have two charges, Q1 and Q2. The value of Q1 is given. It is 2 microcoulomb and Q2 is 1 microcoulomb, 1 into 10 to the power minus 6 coulomb, and the separation is given, it is 10 centimeters, so we can write in meters. In meter, it is 0.1 meter. Question is where a third charge should be placed such that it experiences no net force due to these charges. हम third charge को कहाँ place करें कि वो उस पे net force 0 हो? देखो, so there are two possibilities. अभी अगर हमने जो लास्ट क्वेश्चन में बी पॉइंट के थ्रू नहीं निकाला था, इस बार हम उस सेंटर पॉइंट के थ्रू दोनों फोर्सेस निकाल के ऐड करें अगर तो? हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है. देखो, लेकिन ना पॉसिबिलिटीज दो होती हैं वैसे, बट यहाँ पे वो सेंटर में हम प्लेस करने वाले हैं. मतलब हम अपने थर्ड चार्ज को यहाँ पे कहीं प्लेस करेंगे, वो हमें पता नहीं है कि वो सेंटर है या क्या है, बिकॉज चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, राइट? है ना? तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा इधर हो या थोड़ा सा इधर हो, ये पॉसिबिलिटी भी है. बिकॉज जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा. दिस इज वन थिंग. एंड सेकेंड इज, जब हम बात करते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस और उसको थर्ड चार्ज को हम कहाँ प्लेस करें, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि हम उसको हमेशा दोनों चार्जेस के बीच में ही कहीं प्लेस करेंगे. उसको हम एक साइड में भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि कौन सी पोजीशन जो है वो बेस्ट पोजीशन है फॉर दिस थर्ड चार्ज. उसके लिए हमने क्या करना है, हम ये अज्यूम करें इनिशियली, देखो ये आपका चार्ज पॉजिटिव, इट इज गिवन टू यू नो. बहुत ध्यान से सुनना बेटा. Both दो the इट इज नॉट. charges are positive. Both the charges are given positive. हाँ, बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव. ठीक है, ये दोनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव है. अगर हमारा थर्ड चार्ज यहाँ पे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ सिचुएशन वेयर दिस चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो यहाँ पे भी आप पॉजिटिव रखोगे और यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो आप उस पॉजिटिव चार्ज को. इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग दीज टू वी कैन कंसिडर जस्ट वन, बिकॉज चाहे आप इस साइड प्लेस करो चाहे आप इस साइड प्लेस करो, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, राइट? तो अब ये वाला चार्ज जो है Q1 इसको रिपेल करेगा इस साइड नो, F1 फोर्स एक्सर्ट करेगा.
और जो इधर Q2 चार्ज है ये इसको उधर की तरफ धक्का मारेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। तो F2 जो है वो इधर की साइड लगेगा। तो दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो बैलेंस कर लेंगे वो, है ना? Yes, ma'am. लेकिन अगर मैं अपने इस थर्ड चार्ज को सेंटर में प्लेस करने की बजाय अगर हम ई पॉइंट पे या डी पॉइंट पे प्लेस करते हैं तो क्या होगा? ई पॉइंट पे अगर हमने क्यू को प्लेस किया तो Q1 इसको पुश करेगा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। प्लीज लुक एट द स्क्रीन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी टाइम वी डू नॉट put the third charge at somewhere at the mid center or somewhere on the line joining the two charges. Sometimes we place the charge at closer to one of the charges. Are you getting what I'm saying? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर हम थर्ड चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं तो Q1 जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज करेगा ना, ये अपना जो Q1 है। अभी इसको भूल जाओ, हाइड कर दो, ऐसे इसको हाइड कर दो कि ये बीच वाला जो चार्ज वाला जो हमने जो सी वाला पॉइंट है ये है ही नहीं यहाँ पे। और आई कैन ड्रॉ दिस, रीड्रॉ इट सेपरेटली अगर आपको डाउट है तो। शुड आई रीड्रॉ इट फॉर दिस ई पॉइंट, और यहाँ पे क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? Yeah, ma'am. ठीक है, अब जो बी पॉइंट पे चार्ज है आपका Q2, ये भी पॉजिटिव है। अब ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा इसी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में Q1 एक्सर्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में Q2 भी एक्सर्ट कर रहा है, राइट? तो क्या यहाँ पे Yes, कोई ma'am. पॉसिबिलिटी लग रही है आपको इक्विलिब्रियम की? नहीं. क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये हम सिचुएशन कंसिडर नहीं करेंगे। हम कौन सी सिचुएशन कंसिडर करेंगे? जहां पे दोनों फोर्सेस ऐसे एक्ट हो रहे हैं। क्लियर है ये? Yes, ma'am. तो हम थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करेंगे? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, कहीं पे भी बीच में। साइड्स में हम नहीं प्लेस करेंगे क्योंकि साइड्स में दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी ही नहीं। क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. अभी मैं इसको रीड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए था आपका। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो वी हैव दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी, और यहाँ पे आपका चार्ज है Q1 और यहाँ पे आपका चार्ज है Q2, and the distance between these two charges is R. Now I'm going to place this charge, third charge Q, somewhere here and point C. तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे? Let's consider this distance as X. ठीक है, ये पूरा आपका आ रहा है ना? तो क्योंकि ये तो नहीं होगा कि सेंटर में नहीं है ये, बिकॉज दोनों चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट है, तो सेंटर में तो होगा ही नहीं। अब अगर ये R है और ये X है तो ये आपका क्या होगा? R माइनस एक्स होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. अब हम F1 निकालेंगे। F1 इज द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q। क्या आएगा? 1/4πε0, और यू कैन राइट K डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एवरी टाइम यू राइटिंग दिस, तो यू कैन मेंशन इट समवेयर इन योर सॉल्यूशन एंड राइट K. Actually we do not prefer to write K because K की बहुत, we use K for dielectric constant as well, no? तो यहाँ पे आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो कि आर K is this value. ठीक है, एंड यू कैन यूज दिस K डायरेक्टली। समझ रहे हो ना K कैसे यूज करना है? तो यहाँ पे मेंशन करोगे, डिक्लेयर करोगे, क्योंकि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। तो K, अब Q1 Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम F2 के लिए निकाल सकते हैं। F2 के लिए क्या आएगा हमारे पास? Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? Yes, ma'am. Now these two forces are acting in a opposite direction. F1 is acting in this direction and F2 is acting in this direction. And because the system is in equilibrium, so no net force is acting on this charge Q because of these two charges. So F1 has to be equal to F2. No? Yes, ma'am. तो अब इसको हम पुट करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम। ठीक है, जो कोई डाउट होगा तो हम पूछेंगे भी साथ साथ, इमीडिएट उसी टाइम पूछेंगे हम, क्लियर करेंगे भाई, तो रखना नहीं है अंदर।
k q1 q by x square is equal to k q q2 divided by r minus x whole square. अब आपका k से k कैंसिल हो गया, q से q कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या आ गया बताओ? Q1 Q2 इक्वल मतलब Q1 upon x square is equals to Q1 Q2 upon r minus x का whole square. q1 upon x square is equal to q2 upon r minus x. R minus X. Now just put the values here. Put the values here. Q1 is given, it is 2 into 10 power minus 6 upon x square. X is the variable that we have declared. And Q2 is 1 into 10 power minus 6. R is given, it is 0.1. 0.1 minus x whole square. minus 6 आपको cancel हो जाएगा, ठीक है? And we're left with 2 upon x square is equal to 1 upon 0.1 minus x whole square. I hope this part is clear. Yes, ma'am. Now see, listen to, look at the screen. Here we have, square terms. Only 2 is not in this, the perfect square term. जो आपके denominators हैं वो square terms हैं. तो अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक्सपैंड करने की बजाय ना, वी कैन टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स. समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. दोनों साइड ऑफ स्क्वायर रूट, आई एम राइटिंग हियर नाउ, ओके. दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आपका ये ऊपर आ गया √2 और नीचे क्या आ जाएगा x. क्लियर है? और यहां आ जाएगा आपका 1 अपॉन, यू कैन राइट प्लस माइनस इफ यू वांट टू, 0.1 माइनस x. you'll get this. Now cross multiply and get the value of x. क्या आएगा? √2 bracket 0.1 minus x is equal to x. Now you can solve for x. ठीक है? x क्या आएगा हमारा? इसको आप उधर लेके जाएंगे तो ये आपका हो गया 0.1 √2 in the numerator, and in the denominator you will get, move this this side portion minus √2x to the other side, you'll get 1 plus √2x. x common, bracket में आ जाएगा 1 plus √2. Now you can find the value of x. Putting the values here. Value of √2 is 1.414 divided by 1 plus 1.414 is 2.414. ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे. सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको, यू कैन राइट 1.4 और 2.4. 14/24 हो जाएगा आपका ये, ठीक है? 7/12, तो ये आपका आएगा नियरली इक्वल टू 0.058 मीटर, 586 मीटर, और वी कैन राइट 5.86 centimeter, because see initially the distance you can see it is given in centimeter, no? तो आपने फाइनल डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में निकाल लिया, 5.86 centimeter. So this is your 5.86 centimeter x. So from q1 this is the distance, right? So this charge, the third charge q, needs to be placed at a distance of 5.86 centimeter from this charge q1. Clear? Yes, ma'am. Okay, please write the solution now. If you have any doubt, you can ask me. Ma'am. ओके, चलो ठीक है, आप करो और मुझे बताओ कि हम थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करेंगे. Okay, so we have these two charges. They are separated at distance r. R is 10 centimeter, 0.1 meter. So where a third charge should be placed? Hanji? Sorry to disturb you, but should I just take the magnitude of the charges while equating them? Yes, you can take the magnitude of the charges.
अच्छा, आपने क्यू को प्लेस कहाँ पे किया है? After the B point, like हाँ, along AB. यहाँ ना? हाँ. क्यों यहाँ क्यों प्लेस किया? Because if you put it in the center and मान लेते हैं कि Q is a positive charge, then the forces will act in the same direction and it won't be in equilibrium. So put it down there so that we can equate the forces. यस। प्रियांशी, आपको समझ आ गया? यस मैम। पक्का क्लियर है ना? यस मैम। सेंटर में रखोगे ना तो फोर्सेस आपके सेम डायरेक्शन में आएंगे, साइड में रखोगे तो फोर्सेस आपके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। इधर यू कैन टेक अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बट वो जो फोर्सेस का डायरेक्शन है वो आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज Q1, फोर्स एक्सर्ट होगा इस डायरेक्शन में, और दिस Q2 चार्ज विल अट्रैक्ट Q, नो? इफ यू कंसिडर Q टू बी पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव कंसिडर करोगे तब भी अपोजिट डायरेक्शन आएंगी, पॉजिटिव कंसिडर करोगे तब भी अपोजिट डायरेक्शन आएंगी। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ जी, तो F1 निकाला पहले। F1 is K, Q1, Q, and the distance, see, we can take this distance as x, so it is r plus x square. Similarly, we can write for F2, it is K, Q2, Q divided by x square. Now you can equate these two forces. K, Q1, Q, r plus x whole square equals K, Q2, Q अपॉन एक्स स्क्वायर। के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, Q1 के प्लेस पे नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज, 2 × 10⁻⁶, r इज योर 0.1 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल कर दोगे, अब स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, तो √2 divided by 0.1 plus x is equal to 1 upon x. Now cross multiply, 0.1 plus x is equal to √2x. So x ना, तो देखो हमने इसमें √2 plus 1 लिखा है नीचे, उसमें √2 minus 1 है। ये Q1 है, Q2 है, एंड दे आर डिस्टेंट r अपार्ट, और यहाँ पे हम चार्ज Q को प्लेस कर रहे हैं, राइट? बिकॉज इसको हम बाहर की साइड प्लेस करेंगे सो दैट फोर्सेस अपने कैंसिल हो जाएं, बिकॉज वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर चार्ज इज नेगेटिव। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तब भी जो Q1 है इसको रिपेल करेगा और Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो ऐसे फोर्सेस एक्ट करेंगे। अगर ये नेगेटिव भी है तो Q2 इसको रिपेल करेगा, तो F2 फोर्स यहाँ एक्सर्ट होगा, और Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा, तो F1 फोर्स यहाँ एक्सर्ट करेगा। वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वी आर गेटिंग फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शंस, राइट? यहाँ करते हैं तो सेम डायरेक्शन में फोर्सेस आते हैं, इसलिए हम बाहर प्लेस करते हैं। एक तो ये चीज हमने डिस्कस की थी इसमें जो इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड आपका ये है कि सी बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और सेकेंड ये कि अगर आप ये डिस्टेंस आप r ले रहे हो तो आपने ये वाला डिस्टेंस ले लिया x, राइट? ऐसे किया। अब हम F1 निकालते हैं, F1 इज इक्वल टू F2 करते हैं। तो F1 क्या है आपका? फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1, तो K, Q1 और Q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो r प्लस एक्स का स्क्वायर है, नो? और ऐसे ही आपका K, Q2, Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका x स्क्वायर है। अब आप कैंसिल कर दोगे ये, अब Q1 आपका 2 × 10⁻⁻⁶ है, राइट? और ये आपका 1 10⁻⁻⁶ है, तो -6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 रहेगा, क्योंकि 10⁻⁻⁶ तो ऊपर न्यूमरेटर्स में कैंसिल हो जाएगा, और r की वैल्यू आपकी 0.1 प्लस x का होल स्क्वायर है, राइट? और यहाँ पे आपका 1 अपॉन x स्क्वायर है। अभी आप स्क्वायर रूट जब लोगे ना तो ये आपका ऊपर √2 आ गया, और नीचे आ गया 0.1 प्लस x, और यहाँ आ गया 1 अपॉन x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है, यही आ रहा है बेटा, हाँ, यही हाँ. आ रहा है। 0.1 प्लस x minus इज x इक्वल टू equals √2x, 0.1. राइट? तो √2 x माइनस x लिख सकते हैं ना, तो √2x minus x, if you move this x to the other side,
इज इक्वल टू 0.1 हो जाएगा. अब x जब आप कॉमन लोगे देन यू विल गेट √2 - 1 इन द ब्रैकेट. Yes. X is equal to 0.1 divided by √2 - 1. Now you can rationalize it. तो इसको हम √2 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रैशनलाइज कर देते हैं. तो नीचे आपका डिनोमिनेटर 2² - 1 हो जाएगा. कैंसिल. √2² - 1 is 1. तो यहाँ आपका x आ गया 0.1 √2 + 1 and √2 is 1.414. तो ये वैल्यू आ गई आपकी. यही आ रहा है हाँ ऋषिका, हाँ. है ना. तो 0.1 और ये आपका 2.414 हो गया. ठीक है. तो आपका आ गया 0.2414 मीटर और इन सेंटीमीटर वी कैन राइट 24.14 सेंटीमीटर. This is the answer. So this charge has to be placed at a distance of 24.14 centimeter from charge Q2. तो ये Q2 से डिस्टेंस है ना, फ्रॉम Q2 है ये. तो अगर आपको Q1 से निकालना है तो Q1 से क्या आएगा, तो उसमें हम 10 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे बिकॉज हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो अगर आपको Q1 से निकालना है तो Q1 से डिस्टेंस कितना आएगा, 24.10 सेंटीमीटर. तो आंसर इज 34.14 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. Three equal charges, 2 × 10⁻⁶ coulomb each, are held fixed at the three corners of an equilateral triangle of side 5 centimeter. Find the coulomb force experienced by one of the charges due to the rest two. First, draw an equilateral triangle. कुछ आइडिया इस टाइप का आपने सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किया हुआ है? कैसे सुपरपोजिशन करेंगे? Superposition though we apply everywhere wherever we have more than two charges, there we apply superposition principle. I mean, say that we just add the charges. Yes, we'll add the forces, but what if the forces are acting in different directions, then what? See, अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, हमारे पास तीन charges हैं and they are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 5 centimeter. This side is 5 centimeter, right? So we can write A as 5 centimeter, or in meters it is 5 × 10⁻⁻2 मीटर. ठीक है. The value of the three charges is given. ये आपका इक्वल है, तीनों चार्जेस आपके सेम वैल्यू है और ये आपका 2 माइक्रोकूलम है. ठीक है. अब आपको क्या बोला है कि किसी भी एक चार्ज पे बचे हुए दोनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है. तो हम एक काम करते हैं, लेट्स फिक्स एनी ऑफ द चार्जेस. लेट्स टेक दिस चार्ज विच इज एट C. ठीक है, इसको हमने फिक्स कर लिया. अब इस चार्ज पे ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, बिकॉज ऑल चार्जेस आर लाइक चार्जेस, सो दे विल रिपेल ईच अदर. नो, चार्जेस आपके लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे. तो ये आपका जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये इस डायरेक्शन में करेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको ऐसे रिपेल करेगा, है ना. तो अगर हम इसको F1 मान लेते हैं, ये आपका है फोर्स बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, है ना. ये जो A पे जो चार्ज Q है ये एक्सर्ट कर रहा है फोर्स C पे. F1 नहीं आ रहा है तो हमें क्लियर आप पूछेंगे. और एक चीज और है कि पहले सुनो ध्यान से कि मैं क्या करवा रही हूँ. ठीक है. अब ऐसे ही B एक्सर्ट करेगा C पे, ऐसे फोर्स B का जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है C पे उसका डायरेक्शन ये होगा और ये आपका F2 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. हम एक काम करते हैं, पहले हम दोनों फोर्सेस के एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं. तो जो आप F1 आएगा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. F1 जो आएगा आपका वो क्या आएगा, K Q1 Q2 मींस Q into Q स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस A स्क्वायर, राइट, है ना. ऐसे ही आपका F2 क्या आएगा, F2 ये वाला जो ये जो B एक्सर्ट कर रहा है इस पॉइंट पे वो F2 है. बिकॉज ऑफ दिस चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो F2 है. इस चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो F1 है. तो F2 क्या आएगा, K Q square upon A square. See, you're getting the same expression for both F1 and F2 because they are at equal distance from C, no?
अच्छा, अब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो अब आपको क्या निकालना है? नेट फोर्स निकालना है सी पे। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या आएगा? ऐसा कुछ यहां कहीं आएगा, डायगोनल, ऐसे ही होता है ना। और रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ, F2 square plus 2F1 F2 cos theta. यस, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये आपका मैग्नीट्यूड निकलता है रिजल्टेंट का, है ना। ये आपने पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया हुआ है। अब आपके F1 F2 दोनों सेम है, तो इन प्लेस ऑफ F2 वी कैन राइट F1। Yes. इसकी जगह पे F1 रख दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं. तो हम इसको 2F1 स्क्वायर कर सकते हैं, और ये भी आपका 2F1 स्क्वायर हो गया एंड कॉस थीटा, ठीक है। स्क्वायर लिखो, और फिर प्लस 2F1 स्क्वायर एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जो साइन 30 डिग्री 1/2. होती है 1/2, और उसका अंडर रूट ले लो। हाँ, ये बेटर है, ये भी ठीक है। वो भी उसमें करते तो वो भी हो जाता वैसे, बट ठीक है। ये 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर इज 3F1 स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया? √3F1, है ना। तो दिस इज द नेट फोर्स। अब आपको F1 का वैल्यू निकालना है, उसको यहां पे निकाल सकते हैं हम। वैल्यूज पुट करेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹ फॉर K, Q इज 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस इज 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू। तो ये आपका आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 to the 12। In the denominator we have 25 into 10⁻⁻4, ठीक है। अभी 9 4 जा 36 आ गया, 36/25। और यहाँ पे आपकी 10 की पावर क्या आएगी? -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, -12 + 4 इज -8, -8 + 9 इज 1, 10 आ गया ये, ठीक है। तो 36/25 जब करोगे तो आपका जो इसको सॉल्व करके क्या आएगी वैल्यू देखो, 1.44 इंटू 10, और वी कैन राइट 14.4 न्यूटन। आर यू गेटिंग दिस वैल्यू? Yes, ma'am. और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73. 1.73. Yes, 1.732 into F1 is 14.4. Now multiply these two and you will get your answer. Yes. Please read the question first. Four charges, each equal to -q. So we have 4 charges and the value of all these 4 charges is -q, and they're placed at the corners of the square, and a charge +q is placed at the center. So let's join the opposite vertices. To get the center point. So +q charge is there at the center. If the system is in equilibrium, find the value of q. For the system to be in equilibrium, net force must be 0, right? Net force on any of the charges should be 0 for the system to be in equilibrium. So let's consider any charge, one charge. Let's consider this charge, q, -q, and label these vertices. Let this point be A, this is your B, this is your C, and this is D. So because of the charge present at A, see, हम किस पे focus कर रहे हैं? We are focusing on the charge which is at B, no? Yes, ma'am. अब जो चार्ज A पे प्रेजेंट है, तो हम सिर्फ A और B को देखेंगे, बाकी सब भूल जाएंगे। लाइक चार्जेस है तो A उसको बहुत जोर से पुश करने वाला है, बिकॉज ये लाइक चार्जेस है, राइट। तो A पुश करेगा इस डायरेक्शन में, करेगा या नहीं करेगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब A जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस चार्ज पे, लेट्स से वो फोर्स है F1, तो F1 इज द फोर्स exerted by A, charge at A on
charge at B. ठीक है, so we can write हाँ the expression for F1. पर अभी हमने सिर्फ एक ही चार्ज का फोर्स निकाला है, and let's take this distance as A. स्क्वायर का साइड दिया हुआ है हमें, हाँ नहीं मतलब नहीं दिया। तो चलो हम कंसिडर कर लेते हैं। तो K माइनस क्यू स्क्वायर हो गया आपका डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया हमारा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज जो हमारा ए पे प्रेजेंट है। अभी हम क्या करेंगे, जो ये वाला चार्ज है देखो सी वाला, अब हम्म बी और सी पे फोकस करो, क्योंकि हम ना नेट फोर्स बी पे निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं? बी B4 नेट फोर्स ऑन बी निकाल रहे हैं हम। तो अगर हम बी पे निकाल रहे हैं तो हम सब चार्जेस बी पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो निकालेंगे, राइट? तो सी हाँ जो है वो भी बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऐसे एक्सर्ट करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज अगेन यू yes कैन ma'am लाइक चार्जेस, माइनस क्यू लाइक चार्जेस है, तो ये हाँ एक्सर्ट कर रहा है। F2 की वैल्यू क्या आएगी भाई बताओ? K सेम ही आएगी मैम। सेम आएगी, माइनस क्यू एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, अभी हम किसका निकालेंगे बताओ, कौन सा रह गया? डी रहता है और फिर बीच वाला प्लस D क्यू। हाँ, तो इसके वाला तो हमने F2 लिया है, और D रहता है और बीच वाला प्लस क्यू रहता है, तो D का हम ले लेते हैं F। अब D जो है, D और B पे फोकस करेंगे बस, ये लाइन पे जो डायगोनल है। हम्म और ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा ये ऐसे, ये भी पुश ही करने वाला है इसको, बिकॉज अगेन लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस है तो उसको ये धक्का ही मारेगा, ये भी बोलेगा जाओ यहाँ से। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो F3, अब K माइनस क्यू क्यू स्क्वायर हो गया एंड द डिस्टेंस BD। BD को कैसे फाइंड करोगे? hypotenuse हाइपोटेनियस क्या होता है? hypotenuse theorem A√2 होता है ना। हम्म पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो √2 ए आ जाएगा, हाँ तो A का होल स्क्वायर हो गया ये। और वी कैन राइट दिस एज KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ठीक क्या है, ये तो सब। हाँ ओके। अभी एक और चार्ज है यहाँ पे, इसको पॉइंट को ले लेते हैं O। अब देखो ये प्लस क्यू है ना, तो ये जो तो चार्ज ये अंदर की तरफ करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये हमारा फोर्स है F4। F4, अब डिस्टेंस आपको OB लेना है, और ये K हम्म कैपिटल Q स्मॉल q, ये दोनों चार्जेस हो गए, और डिस्टेंस आपको OB लेना है, तो OB क्या आएगा? BD/2, BD का हाफ होगा ना। हाँ BD आपका क्या है? A√2 yes ma'am बाई टू, तो ये आप √2 कर दोगे, इसको कैंसिल हो जाएगा, A/√2 आ गया, तो A/√2 का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका 2 ऊपर ले जाओगे, 2KQ बाई ए स्क्वायर। तो हमने सब फोर्सेस के लिए एक्सप्रेशंस निकाल लिए। नाउ यू कैन सी ऑल these forces are acting in different directions, right? And we are going to find the net force on this charge which is at B. तो कैसे निकालेंगे नेट फोर्स बताओ? सबसे पहले हम एक फोकस, सेकेंड। बताओ। वी could just resolve F1 and F2 और फिर F3 और F4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड नहीं पर कैंसिल नहीं कर सकते, डिस्टेंस इज नॉट द सेम। यस, वी तो कैन नॉट। F3 एंड F4 को हम इक्वेट कर देंगे, जिसके पास से हमारे पास आई गेस A की वैल्यू आ जानी चाहिए, तो फिर रिजॉल्व करने के बाद डाल सकते अरे देखो, हम F3 और F4 को कैसे इक्वेट करेंगे, इक्वल थोड़ी है। हम ऐसे इक्वेट नहीं अच्छा करेंगे। फर्स्ट विल फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस F1 एंड F2, यू नो, इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले, F1 और F2 का रिजल्ट। हाँ दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन वो अपोजिट। F3 नहीं होगा। हाँ हाँ, कर रहे हैं कर रहे हैं, आप भी ठीक हो कि हम इक्वेट करेंगे रिजल्टेंट, क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस को हम इक्वेट करते हैं, बट हम F1 F2 को भूल नहीं सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। So first we'll find the हाँ resultant of these two forces. तो F1 is acting horizontally, F2 जो एक्ट हो रहा है वो वर्टिकली एक्ट हो रहा है, राइट? तो अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल होगा। हाँ F3 की डायरेक्शन में। वो F3 की डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम F' ले लेते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो F' है, और क्योंकि ये भी डायगोनली एक्ट हो रहा है ना F3,
और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो भी आपका क्या आ रहा है, डायगोनल आ रहा है। हाँ। तो पहले हम एफ डैश निकालेंगे, तो एफ डैश आपका वही रिजल्टेंट फोर्स, कैसे निकालते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, 2F1 F2 cos 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री वी डोंट हैव टू राइट द एक्सप्रेशन, वो हमारा वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब F1 F2 को ध्यान से देखो, ये दोनों आपके एक जैसे हैं, ये क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इन प्लेस ऑफ F2 वी कैन राइट F1, यस। तो आपका F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर हो गया, तो √2 F1 आ गया। ठीक है, हाँ। अभी सी एफ डैश रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि F1 और F2 का कंबाइंड इफेक्ट एफ डैश है। तो अभी हमने बिकॉज एफ डैश मेंशन कर लिया है, तो इसको हम हटा सकते हैं, इसका रोल खत्म हो गया, बिकॉज उसका जो नेट इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो डायगोनली पड़ रहा है, वो एफ डैश हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, राइट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, तो उसको हम इस फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, नो। हाँ। अब you can see these two forces are acting in the same direction, F dash and F3, and F4 is acting in the opposite direction because net force जो है आपका वो जीरो आएगा, इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। तो आपके जो अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस हैं, मतलब F डैश प्लस F3 जो है आपका, वो आपका इक्वल आएगा F4 के, नहीं। F4 के। F डैश क्या है, हाँ। √2 F1, तो √2 F1 क्या है, K क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और F3 क्या है, K क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। F4 क्या है, ये 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर। कैन वी राइट लाइक दिस? यस। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। नो मैम। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू राइट दिस, वी नीड टू सॉल्व दिस। ठीक है, अभी इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, नहीं। हाँ। के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हम कॉमन लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा आपका √2 प्लस 1/2। यहाँ पे 2 कैपिटल के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। अब के से के कैंसिल हो गया, इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ए क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Because we need हाँ। to find the value of this small q, so we can write this on the other side. So 2 into small q is equal to q √2 plus 1/2। अभी क्या करेंगे हम, स्मॉल q is equal to q upon 2। अच्छा, विद नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ना नेगेटिव है ना ये, तो जस्ट पुट अ नेगेटिव साइन हियर, ठीक है, क्योंकि आपका q माइनस q इंटू क्यू है, ये नेगेटिव आएगा ना। और अभी यहाँ पे √2 प्लस 1/2 है, तो एक काम करते हैं हम, एक मिनट, ठीक है, अभी कैसे करेंगे इसको सॉल्व, आई गेस तो कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम। और ये 2 √2 प्लस 1 लिख सकते हैं। हाँ। तो आपका ये आ गया -q/4 1 प्लस 2 √2, एंड क्लोज दिस इन अ बॉक्स। फर्स्ट रीड यस, ये तो हम अब कर सकते हैं। करो ट्राई। आपके पास 4 चार्जेस हैं, 4 कॉर्नर्स पे हैं स्क्वायर की साइड गिवन है, आपको कूलम फोर्स फाइंड करना है बाय एनी ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 3। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन। अभी किया है, वो ट्रायंगल जैसा ही है। हाँ, ट्राइंगल जैसे ही है।
All the charges are equal, so we can write Q. And Q is 2 microcoulomb. Side is given 5 centimeter, so we can write A for side. Convert this into meter now. Mark the vertices. हाँ जी, प्रियांशी कैसे करेंगे बेटा? प्रियांशी कैसे करेंगे? कोई भी एक वर्टेक्स कंसिडर कर सकते हो आप। सी कंसिडर कर ले, हाँ वही वर्टेक्स। हाँ हाँ, और क्योंकि फिर वेक्टर हम्म, हाँ तो जैसे कोई भी पिछला हम एक क्लास। वर्टेक्स कंसिडर कर सकते हैं। तो अब इस ये क्वेश्चन को आई जे के हेल्प से करने की एक बार कोशिश करें। नो नीड, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे बी जो एक्सर्ट करेगा फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, डी फोर्स एक्सर्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, और जो ए फोर्स एक्सर्ट करेगा वो करेगा डायगोनली। नो, so all these three यस। forces are acting in different directions, you can see. So अब जो D फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये वाला, और B एक्सर्ट कर रहा है ऐसे, A एक्सर्ट कर रहा है लेट्स से F1, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय A। कुछ भी ले सकते हैं, ये वेरिएबल्स है, मतलब आप कैसे भी कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो जो A फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो ऐसे एक्सर्ट करेगा डायगोनली, F1 एक्सर्ट कर रहा है, और जो आपका B फोर्स एक्सर्ट करेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, F2। और नहीं, जो डी तो हॉरिजॉन्टल। ए, ये है ना ए, तो आपने लेबल ऐसे किया है, ये जो डायगोनल वाला है उसको कुछ भी अज्यूम कर लो, लेबलिंग ही तो करी, नोटेशन नहीं है ये। बी को हम ऐसे ले रहे हैं और डी वाला रिपेल करेंगे ना, बिकॉज ऑल चार्जेस आर लाइक चार्जेस, तो हाँ दे हाँ। repel। तो F2 का जो वैल्यू आएगा आपका वो आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। और F3 अगेन के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही सेम। आएगा, सेम आएगा। एंड दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे इन दोनों का? रूट टू एफ एफ सॉरी, रूट 2 इंटू F2। हाँ जी, क्योंकि वो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। नेट ऐसे निकलेगा, इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम, वो आपका डायगोनली ही एक्ट करेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, ये एफ डैश यहाँ एक्ट करेगा, तो आपका दोनों इक्वल है, तो F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर रूट टू F2 हो जाएगा। और वी कैन राइट रूट टू F2 के प्लेस पे जस्ट पुट दिस, write this expression kq square by as a square and put the values and get the value of f dash, रूट टू 9 into 10 power 9, q की वैल्यू पुट करेंगे 2 into 10 power minus 6 स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, मतलब 5 into 10 power minus 2 का स्क्वायर हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा? रूट टू इंटू 9, टू टू सा 4, 10 की पावर 9 है, इधर -6 और 8 12 हो, 0.4। नीचे 25, 10 की पावर -4, ये +4 हो गया। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? 14.4। 14.4 आ रहा है, 36/25 आएगा। हाँ, मतलब पूरा नहीं, सॉल्व करके अच्छा 14.4 आपने रूट 2। इसको 14.4 निकाला है ना। हाँ, F2। F2 14.4 न्यूटन है और F3 भी 14.4 न्यूटन है। अब इसको मैंने एक्चुअली हाँ डायरेक्टली पुट कर दिया यहाँ पे, तो अब रूट टू को मल्टीप्लाई करोगे इससे, हाँ। है ना, रूट टू F2, क्योंकि आपको F डैश निकालना है, तो F डैश का वैल्यू क्या आ रहा है? इट्स 20.36 न्यूटन, ठीक है। क्लियर?
अच्छा, अब F1 निकालो। F1 is k q square and the distance. This distance is root 2a. हम्म, k q square upon 2a square. अब के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आ रही है ना 14.4 न्यूटन, आपने जो फाइंड किया है वैल्यूज पुट करके। हाँ। तो इसको हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 14.4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये, है ना? नहीं, ठीक कह रहे हैं गलत कह हाँ रहे हैं? हाँ तो ठीक है। यस हाँ 7.2 न्यूटन आ गया F1 भी। तो F1 और F डैश दे बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, so just add these two forces to get the net force. तो नेट फोर्स क्या आएगा आपका? F1 प्लस F डैश 20.36 प्लस 7.2. This is the net force and the value is 27.56 Newton. Read the question first. Two equal like charges in air repel each other with a force of F. By what percentage should each charge be reduced? कितना परसेंट हम हर चार्ज को रिड्यूस करें कि उनके बीच में, जो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो 28% रिड्यूस हो जाए अगर हम उसको किसी और मीडियम में रख रहे हैं अदर देन वैक्यूम और एयर, मतलब जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 2 है। तो आपको एक सिचुएशन दी हुई है इसमें। इनिशियली क्या है कि हमारे पास जो ये दो चार्जेस है, let's take two charges as q1 and q2, and distance between these two charges we can take as r. तो initially they are repelling each other, ठीक है, with a force F. और ये कहाँ पे प्लेस्ड है? ये एयर में प्लेस्ड है। तो जब ये एयर में प्लेस्ड है तो ये रिपेल कर रहे हैं और आपका जो फोर्स है वो आ रहा है के q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये बोल रहे हैं कि कितना परसेंट जो चार्ज का वैल्यू है उसको हम रिड्यूस करें, मतलब परसेंट कितना चार्ज का वैल्यू जो हम रिड्यूस करें। ये क्वेश्चन ये है, कितना परसेंट चार्ज का वैल्यू रिड्यूस करें कि फोर्स जो है उनके बीच में वो 28% रिड्यूस हो जाए। मतलब हमने इसको Q1 को और Q2 को, क्योंकि इक्वल और लाइक चार्जेस है, तो वी कैन डू वन थिंग, हम Q1 और Q2 दोनों को QQ लिख सकते हैं, नहीं? तो ये आपका के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर हो जाएगा, है ना? अब कह रहे हैं दोबारा कितना। स्टार्टिंग से बता दो। अच्छा, स्टार्टिंग से फिर बता दो। आपको बोला हुआ है कि दो इक्वल लाइक चार्जेस हैं आपके पास, तो हम्म, लाइक चार्जेस को हम क्यू क्यू ले सकते हैं और डिस्टेंस हम इसका आर ले लेते हैं। अब ये रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं तो मतलब एक दूसरे से मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट? और ये कहाँ पे है? एयर में है। और फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे? एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एफ को लिखोगे तो आपका एफ क्या आएगा? के क्यू स्क्वेयर बाय, और वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भी मेंशन हुआ है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हम इसको क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर कर सकते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया रिपल्सिव फोर्स का जब दोनों चार्जेस को हमने एयर में प्लेस किया आर डिस्टेंस पे, तब। ये क्लियर हो गया? अब ये कह रहे हैं कि जो चार्ज का वैल्यू है उसको हम कितना परसेंट रिड्यूस करें, कितना परसेंट रिड्यूस करें। मतलब हमने चार्ज को क्यू से क्या बना दिया? क्यू डैश बना दिया। क्या बना दिया? क्यू डैश। कितना परसेंट रिड्यूस करें कि जो फोर्स है आपका वो 28% रिड्यूस हो जाए। लेकिन एक इसमें हम चीज और भी ऐड कर रहे हैं। अभी हमने इनिशियली चार्जेस को एयर में प्लेस किया था ना, अभी हम एयर में प्लेस नहीं कर रहे। नाउ वी आर प्लेसिंग आवर चार्जेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, ठीक है। तो अब एक न्यू सिचुएशन है जिसमें चार्जेस का वैल्यू डिफरेंट है। दोनों चार्जेस को हम क्यू क्यू डैश ले लेते हैं, क्यू डैश, और डिस्टेंस आर रखते हैं। और फोर्स हमारा जो न्यू फोर्स है वो एफ डैश ले लेते हैं, जो हमारा रिपल्सिव फोर्स है, बिकॉज लाइक चार्जेस रहेंगे वो।
अब ये कह रहा है कि फोर्स 28% रिड्यूस हो गया, और दूसरा ये हमने एयर में नहीं रखा, एयर का तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू 1 होता है, लेकिन अभी हमने इसको किसी और मीडियम में रखा है और उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है वो 2 है। तो आपका जो न्यू फोर्स एफ डैश आएगा, पहली चीज तो वो लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, अगर हम किसी अदर देन एयर किसी मीडियम में रखते हैं तो, है ना। अब आपका जो Q1 Q2 है वो Q डैश हो गया, तो ये Q डैश स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आएगा। अब आपको इसमें गिवन क्या है कि आप फोर्स को रिड्यूस कर रहे हो बाय 28%। तो अगर आप फोर्स को रिड्यूस कर रहे हो तो आपका जो एफ डैश है वो एक्चुअल में क्या है, जो आपका पुराने वाला फोर्स था, ओल्ड फोर्स, ये एफ माइनस 28% ऑफ एफ। तो एफ डैश क्या है आपका, एफ माइनस 0.28 एफ, तो ये आपका आ जाएगा 0.72। नो, किसको नहीं आया ये, क्लियर है? यस मैम। तो 0.72 एफ आ गया आपका, जो न्यू फोर्स है वो 0.72 एफ आ गया। तो इसके प्लेस पे हम 0.72 लिख सकते हैं, 0.72 एफ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है वो 2 है, ठीक है, और क्यू डैश स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट? अच्छा, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, 0.72 और एफ के प्लेस पे ना यही एक्सप्रेशन लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इसको इक्वेट करेंगे यहाँ पे, ये चीज क्योंकि हमने 0.72 और एफ के प्लेस पे लिखा है ये, अभी इसको एज इट इज उतार देंगे। कोई डाउट है बेटा इसमें? अगर है तो बताओ कैंसिल मुझे। आउट हो जाएंगे, हाँ जी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इससे कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, 0.72 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो यहां से आप क्यू डैश स्क्वायर निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 0.72 इंटू 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा है 1.44 क्यू स्क्वायर, तो क्यू डैश आ गया आपका, स्क्वायर रूट लोगे इसका तो आपका आएगा ये 1.2 क्यू। लेकिन हमने ये नहीं निकालना, हमें निकालना है कि कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, कितना परसेंट रिडक्शन हुआ, उसके लिए क्यू डैश माइनस क्यू डिफरेंस निकालेंगे। तो क्यू डैश आपका 1.2 क्यू है, माइनस क्यू करोगे तो ये 0.2 क्यू आ गया, इसका मतलब 20% रिडक्शन हुआ, क्योंकि 0.2 इज मतलब इंटू 100 करेंगे तो 20 आता है ना। परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। यस। आप इस क्वेश्चन को एक बार ऑफलाइन क्लास में दोबारा ले सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसे निकालते हैं ना हम परसेंटेज। हाँ तो हाँ, वो तो है। डैश माइनस क्यू आपका 0.2 क्यू है, अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये 20% आ। क्लियर? आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है ऋषिका? थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं। ट्रिकी लग रहा है, ठीक है। आप एक काम करो, इसको ना बहुत क्योंकि हम बहुत देर से क्लास चल रही है हमारी, है ना, तो इसको ना बहुत आराम से सोचो, देखो और फिर लिखो, फिर इसको समझो कि जो आपने लिखा है वो आपने क्या लिखा है, ठीक है, उसको रिलेट नहीं, करो। मेरे को समझ में तो आ गया। तो थोड़ा लेकिन दोबारा कर लेंगे हम इसको, डोंट वरी, एक बार और ऑफलाइन क्लास में भी कर लेंगे, बट 2-3 बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसी चीज है जो अलग सी है, मैथ्स भी यूज हो रहा है इसमें, है ना।
Let's read the question first. So we have two charges and they are placed at 0, 0, 0 and 1, 1, 1 respectively. Find the force on second charge in vector form. वेक्टर फॉर्म तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कैसे करना होता है ना। तो आपको इसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। तो आपके पास जो चार्जेस हैं, एक है √3 into 10⁻⁻19 कूलम, इट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। और एक और चार्ज है, वो है आपका -6 10⁻⁻6 कूलम, और ये आपका है 1 1 1 पे। आपको फोर्स निकालना है सेकंड चार्ज पे, मतलब इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इन वेक्टर फॉर्म। कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले वेक्टर r1, इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वेक्टर r1, और इसके लिए हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वेक्टर r2, ठीक है। करो। तो r21 कैसे फाइंड करोगे? वो क्या होगा आपका, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर, R2 minus vector R2. we can write 1 minus 0 I cap plus 1 minus 0 j cap plus 1 minus 0 k cap। तो ये आपका आ गया I cap plus j cap plus k cap। We can also find the magnitude of this position vector। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बताओ। √3 है ना, तो हम सिंपली स्क्वायर लेंगे मैग्नीट्यूड का और ऐड करेंगे, तो ये आपका आ गया √3। एक चीज क्लियर हो गई, मैग्नीट्यूड निकाल लिया और वेक्टर फॉर्म निकाल लिया। अब आप फोर्स कैसे लिखते हो? अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं फोर्स का, तो वो होता है हमारा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। तो ये जो डिस्टेंस है हम वो क्या लेंगे, r12 स्क्वायर लेंगे। into r12 vector। नहीं, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लें, अच्छा हाँ ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, 9 into 10⁻⁻। उनकी वैल्यू पुट करेंगे, √3 into 10⁻⁻19 and q2 is 10⁻⁻6 divided by distance square √3 square। अब सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। हम इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड में क्यों ले रहे हैं when we need to find it in vector form? मैग्नीट्यूड पुट करेंगे और साथ में डायरेक्शन लगाएंगे तभी तो करेंगे ना, हम आर कैप लगाएंगे साथ में। हाँ वही ना, तो हमने साथ में आर कैप क्यों नहीं लगा दिया? अभी करेंगे उसको भी बेटा, पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। फोकस इसी पे रहेगा ना फिर आपका। क्या आ रहा है आंसर, 9√3/3 आ रहा है, और 10 की पावर आ जाएगा आपका 9 -19 -6 -16। तो ये आपका आ गया 3√3 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड फोर्स। क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही एक्सर्ट करेंगे, तो चाहे आपको सेकंड चार्ज पे फोर्स फाइंड करना है बट मैग्नीट्यूड तो यही होगा। अच्छा, अब फोर्स को जब हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, देन हाउ डू वी राइट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म? 9√3 नहीं होगा, हाँ जी, √2, 9√2 होना चाहिए ना। नहीं बेटा ये 3 है, ये √3 है। देखो चार्ज की वैल्यू √3 है ये सब ना, हाँ यहाँ पे ओके ये दिखने में लग रहा है ऐसे, ठीक है बट ये √3 नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब वेक्टर एफ को हम कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखोगे, k q1 q2 r12 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका r12 कैप होता है। तो अभी वी हैव टू फाइंड दिस यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये आपका है वेक्टर, सॉरी r21 है ना, नोटेशन हमने r21 ली, जो नोटेशन लिया वही लिखेंगे ना। मैग्नीट्यूड r21 लिखना चाहिए था ना। हाँ, r21 r12 स्क्वायर और r21 कैप। नहीं नहीं, उधर जहाँ हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। हाँ वहां पे भी हमें r21 लिखना चाहिए था, ये r21 है। पता लग रहा है मैं थक गई हूँ। ठीक है, तो r21 कैप
Now, this R21 cap is vector R21 divided by magnitude of vector R21, no? Yes. So vector R21, we know this value, this expression, and R21 magnitude जो है उसका आपका √3 है. तो अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे KQ1 Q2 अपन R21 का जो स्क्वायर है, यहाँ पे भी R21 ही आएगा. ये R12 या R21 डजंट मैटर, ये सिर्फ नोटेशन है. बेसिकली वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो आपका अभी वैल्यू फाइंड किया हमने मैग्नीट्यूड, इसको यहाँ लिख देंगे 3√3 10⁻16. अच्छा, अब वेक्टर R21 क्या है हमारा, ये I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप डिवाइडेड बाय R21 मैग्नीट्यूड, नो, √3. ठीक है, with a negative sign because you can see one charge is positive, other is negative, so place a negative sign. इनिशियली हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया था ना, तो उसमें we have not considered this sign, but जब आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो you'll consider everything. तो अभी क्या है ना, √3 से √3 कैंसिल हो गया, -3. नेगेटिव इसलिए लिया बिकॉज वन चार्ज इज नेगेटिव, अदर इज पॉजिटिव. अच्छा. So this is the vector form. Clear? अट्रैक्टिव फोर्सेस नेगेटिव होते हैं ना, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है.